تحریک جہاد کی ابتدا قاضی ملا سے ہوئی تھی اور یہ آواز پہلی بار 1829 میں سنی گئی۔ غمری میں ایک عام سا اجلاس منعقد ہوا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ داغستان کے مختلف علاقے سے علماء اس اجلاس میں شامل ہوئے۔ سب نے قاضی ملا کو امام بنا دیا اور یہاں سے جہاد کا اعلان کر دیا گیا۔ آورنامی صبح قریب تھا اور یہ نہایت اہم تھا۔ یہاں کا خان نابالغ تھا۔ حکومت اس کی ماں پاخو بیگی نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی۔ ذہانت اور شجاعت میں اس عورت کا کوئی جواب نہ تھا۔ قاضی ملا نے 3000 مجاہدین کے ساتھ کوچ کیا۔ آنندی پہنچے تو اتنے افراد مزید شامل ہو گئے اور آگے بڑھے تو مخالفت شروع ہو گئی۔ زیادہ شدت کی مخالفت نے مسلح مزاحمت کی شکل اختیار کر لی اور دشمن حملہ آور ہوا۔ قاضی ملا نے جوان مردی سے مقابلہ کیا اور دشمن کے 27 افراد ہلاک کر دیے۔ خاصی تعداد میں زخمی بھی ہوئے اور 60 آدمی قید کر لیے گئے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ قاضی ملا پیدل سفر کر رہے تھے۔ راستے میں کئی جگہ وہ رکے اور ایسا لگا جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں نے پوچھا، حضرت آپ کو کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کچھ توقف کے بعد جواب دیا، میں زنجیروں کی آواز سن رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ روسی سپاہی زنجیر میں بندھے ہوئے میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ گویا یہ بشارت تھی جس سے مجاہدین کے حوصلے بڑھ رہے تھے اور ان کا جوش اور ولولہ مجاہدین میں منتقل ہو رہا تھا۔ دوبارہ سفر شروع کیا تو ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گئے اور اعلان کیا، ہم قفقاز کے غیور قوم کو باہر نکال کریں گے اور اللہ نے چاہا تو ماسکو پر بھی اپنا قبضہ ہو جائے گا اور پھر وہاں سے استنبول پہنچیں گے۔ اگر ترکی کا سلطان شریعت کا غافل ہوا اور نیک نکلا تو اسے حکمران رہنے دیں گے اور اگر وہ اس کے برعکس نکلا تو ہم اسے معزول کر دیں گے، زنجیروں سے جکڑ دیں گے اور اس کی سلطنت مومنین کے حوالے کر دی جائے گی۔ لوگوں کے لیے یہ بشارتیں تھی۔ انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ آنندی کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے باہر نکل کر ان کی راہ میں اپنی چادریں بچھا دی۔ آور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ لوگ دیدہ و دل فرش راکھ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خون زاخ کے سامنے پہنچ گئے۔ اس قصبے میں 700 گھر تھے۔ یہاں سے ایک شخص بھی ان کے استقبال کے لیے باہر نہ آیا۔ یہ لوگ پاخو بیگی کے وفادار تھے اور یہاں پاخو بیگی نے زبردست مورچہ بندی کر رکھی تھی۔ یہ روانگی کا 10واں دن تھا۔ 14 فروری سن 1830 کو قاضی ملا نے اپنے مریدوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی قیادت قاضی ملا کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت امام شامل کر رہے تھے۔ خونزاخ کے لوگوں نے ہتھیار اٹھا رکھے تھے۔ بندوق اور رائفل ان کے ہاتھوں میں تھی۔ انہوں نے اعلان جنگ کیے بغیر ہی فائرنگ شروع کر دی اور دوسری طرف سے قاضی ملا نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور زور زور سے قرآنی آیات کی تلاوت ہونے لگی۔ بظاہر یہ آوازیں حلق سے نکل رہی تھی مگر ان میں روحانی قوت شامل تھی۔ خونزاخ والوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فائرنگ کا سلسلہ بند ہوا اور مسلمانوں کی طرف سے حملے کا آغاز ہوا۔ وہیں پاخو بیگی بھی موجود تھی۔ اپنے آدمیوں کی بدحواسی پر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی تلوار سونت کر مبہوت اور خوفزدہ لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے لوگوں کو غیرت دلائی، اگر تم خوفزدہ ہو تو اپنے ہتھیار ہم عورتوں کو دے دو اور ہمارے چرخوں کے پیچھے پناہ گزین ہو جاؤ، کیونکہ تم اس قابل نہیں کہ ہتھیار اٹھا سکو۔ مردوں کو غیرت نے جان دینے پر اور جان لینے پر آمادہ کر دیا۔ خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ مردوں میں ایک عورت کی موجودگی نے کچھ زیادہ ہی جوش و خروش پیدا کر دیا تھا۔ پاخو بیگی کے دفاعی انتظامات بھی بھرپور تھے اور فوج بھی بہت تجربے کار تھی۔ عورت نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ 200 مسلمان شہید ہو گئے، بے شمار زخمی ہوئے اور 60 مسلمان قید کر لیے گئے۔ امام شامل زخمی ہوئے اور ایک مرید نے بچا لیا۔ اس مارکے میں قاضی ملا کے ایک مرید حاجی مراد نے بڑا نام پیدا کیا اور یہ اسی مرد مجاہد کا کارنامہ تھا کہ اس نے مجاہدوں کے جنگی پرچم اور جنگی ہتھیاروں کو بچا لیا تھا۔ قاضی ملا کو اس شکست نے بے حد غمزدہ کر دیا تھا اور یہ غمری واپس چلے گئے۔ قاضی ملا اسے اپنی شکست سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھ رہے تھے۔ وہ اب بھی خون زاخ کی تسخیر سے مایوس نہیں ہوئے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ پاخو بیگی کو شکست دینے کے بعد آور پر حملہ کیا جائے۔ اس فتح سے ان کو روسیوں کا ایک قلعہ میسر آ جاتا۔ روسی بھی غافل نہیں تھے۔ زار نے روسی کمانڈر بیرن روزن کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ قاضی ملا پاخو بیگی سے شکست کھا کر غمری واپس جا چکے ہیں۔ یہ روسی جرنیل ایک دوسری سمت کوہ خراک چلا گیا اور آس پاس کے تمام علاقوں پر قابض ہو گیا۔ یہاں قریب ہی غمری تھا۔ غمری کے لوگوں نے امام شامل اور قاضی ملا کا ساتھ دیا۔ بہت جلد ایک بہت بڑی تعداد ان کے پرچم تلے جمع ہو گئی۔ اب ان کا رخ گھاٹ کے قلعے کی طرف تھا۔ اس کی حفاظت میجر جنرل پرنس بیکویچ کے ذمہ کی گئی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ قاضی ملا کو پیچھے دھکیل دے مگر ناکام رہا۔ قاضی ملا یہاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اتلی بیون کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں کمانڈر بیرن روبے ان کے انتظار میں تھا۔ قاضی ملا نے اسے بھی شکست دی اور اسی قلعے بورنا یا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں توپیں مسلمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ روسی توپیں حرکت میں آئی۔ اگر یہاں بھی روسی کو شکست ہو جاتی تو ان کا تارکوف پر قبضہ ہو جاتا۔ یہاں اچانک روسی کمک پہنچ گئی۔ مقابلہ سخت ہوا اور قاضی ملا کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قاضی ملا نے فرار ہو کر خمشکند میں پناہ لی۔ جس دن سے یہاں پناہ لی یہ مئی 1831 کا آخری دن تھا۔ اب بھی قاضی ملا کی نظریں قلعہ ویزا اپنایا پر تھی۔ یہاں روسی کمانڈر بیرن رو ان کا منتظر تھا۔
काजी मुल्ला ने इस किले का मुहासरा कर लिया। एक दूसरा जनरल एमेनुएल किले की तरफ बढ़ा क्योंकि इसे यकीन था कि बेरन रोजन इस किले को नहीं बचा सकेगा। ये दूसरा जनरल काजी मुल्ला के अक़ब में आकर इन्हें अपने मुहासरे में ले लेना चाहता था। काजी मुल्ला ने करीबी जंगल में पनाह ली। इस जंगल में भी सख्त मार्का हुआ, रूसियों को शिकस्त हुई। एक तोप काजी मुल्ला के कब्जे में आ गई और जनरल एमेनुएल जख्मी हो गया और इसने अपनी कमान जनरल विलियम नोफ के सुपुर्द कर दी। काजी मुल्ला एक बार फिर खुशकन चले गए। यहाँ के इलाकों के लोगों का एक वफद इनसे मिलने आया। इसने इन्हें दावत दी कि दरबंद पहुंचकर रूसियों के खिलाफ जिहाद करें। दरबंद का मुहासरा हुआ और काजी मुल्ला ने 8 दिन तक किले का मुहासरा किए रखा, मगर यहाँ इन्हें कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। दरबंद का मुहासरा उठा लिया गया और एक दूसरे शहर किजलीर पर हमला करके कब्जा कर लिया। यहाँ से इनको 200 कैदी और तकरीबन 4 लाख रूबल माली गनीमत में मिले। 1 दिसंबर 1831 को जनरल काखलूफ को हुक्म दिया गया कि वो काजी मुल्ला की पनाहगाह खुशकंद में कब्जा कर ले। इसने एक दूसरे कर्नल को इस मुहिम पर रवाना किया। इस कर्नल ने हमला किया, मगर यहाँ इतनी सख्त मुजामत हुई कि इस मार्के में 400 रूसी मारे गए। मारे जाने वालों में ये कर्नल भी शामिल था और 8 दूसरे अफसर भी। ये मुकाबला रूसी अफवाज को बहुत महंगा पड़ा। मुजाहिदों के पास जो तोप थी, इसकी उसूलियाबी की कोशिश में इसी रूसी सिपाहियों ने अपनी जानें गंवाई। अब काजी मुल्ला के सामने तख्तीनिया का इलाका था। अगर तख्तीनिया से कफकास तक काजी मुल्ला का कब्जा हो जाता और दागिस्तान भी इनके कब्जे में होता तो एक मुत्तहिदा मुस्लिम कुव्वत वजूद में आ जाती। तख्तीनिया में उन्होंने नजरान का मुहासरा कर लिया। कई जगह कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन खास नजरान में कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं हुई। तख्तीनिया में गैर मुस्लिम कबाइल भी मौजूद थे। इनमें तबलीगी उलमा भेजे गए और काफी काफरों को मुसलमान कर लिया गया। इस इलाके के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इन लोगों में जज्बा ईमानी कुछ ज्यादा ही पाया जाता था। हालांकि यहाँ नो मुस्लिमों का किसी से कोई तासुम नहीं था, मगर मुकामी ईसाइयों और पादरियों को नए मुसलमानों से शिकायत पैदा हो गई। शिकायत ये थी कि वो मुसलमान क्यों हो गए। इन मुसलमानों ने मुकामी ईसाइयों और पादरियों की मुदाखलत को अपनी आज़ादी पर हमला करार दिया। नए मुसलमानों में जोश ईमानी की फरावानी थी और मुकामी ईसाइयों और पादरियों में गम गुस्सा। इसका नतीजा निकला कि दोनों में तसादुम हो गया और कई ईसाई और पादरी कत्ल कर दिए गए। रूसी पुलिस अफसर ने मुदाखलत की तो वो भी मारा गया। बज़ाहिर ये कोई बड़ा वाक़या नहीं था, लेकिन रूसी हुकूमत ने इस वाक़े को किसी और ही मंजर में देख रही थी। इसको तख्तीनिया से खबरें पहुंच रही थी कि काजी मुल्ला और इमाम शामिल इस इलाके में तबलीग इस्लाम में कोशा हैं और लोग मुसलमान होते जा रहे हैं, जिससे हुकूमत के अलावा ईसाइयत को भी खतरात लाहिक हो गए। रूसी हुकूमत को ये इत्तलात भी मिली थी कि काजी मुल्ला और इमाम शामिल हुसूल तालीम के सिलसिले में इस इलाके में काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं, इसलिए वो यहाँ के रास्तों और गली कूचों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इन हालात में अगर इस्लामी तबलीग व इशाअत की कोशिशें जारी रही और मुसलमानों की कुव्वत में इजाफा होता रहा तो रूसी हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। इस इलाके का माहिर रूसी कमांडर बेनर रोजन था और जनरल विलियम नोफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। जनरल बेनर रोजन को हुक्म दिया गया कि वो कफकास जाए और 9 मुस्लिम कबीले कागलीज की ज्यादतियों का खात्मा करे। बेरन रोजन ने मज़कूरा कबीले को हुक्म दिया कि ईसाइयों, पादरियों और पुलिस अफसरों के कातलों को हुकूमत के हवाले कर दें, वरना कातलों को बज़ोर कुव्वत हासिल कर लिया जाएगा। गालगीज वालों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और बेरन रोजन ने फैसला किया कि वो गालगीज वालों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा। इत्तलात के मुताबिक 14 मील दूर ये जगह दुश्वार गुजार रास्तों से मिली हुई थी और यहाँ फौजी साजो सामान के साथ पहुंचना दुश्वार ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन कार्रवाई भी बहुत जरूरी थी। इसलिए इसने 3000 सिपाहियों, 4 पहाड़ी तोपों और 500 मिलिशिया पर मुश्तमिल जवानों का एक दस्ता तैयार किया। सड़कों की अदम मौजूदगी में यह फौज अपने साथ खैमे वगैरह नहीं ले जा सकती, इसलिए हुक्म दिया गया कि चंद अफसरों के खैमों के सिवा सारा सामान रहने दिया जाए और हर शख्स अपने हथियारों और बिस्किटों का थैला अपने साथ रखे। थैलों के ये बिस्किट 6 दिन की ग़िज़ा के लिए काफी थे। 1 दिन और 1 रात सफर करने के बाद यह फैसला किया गया कि कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ द स्टाफ और चांसलरी के खैमे साथ रखे जाएंगे और इनके सिवा दीगर फौजी अफसरों के खैमे रास्ते में छोड़ दिए जाएंगे और ये सफर फिर शुरू हो गया। चौथे दिन ये मालूम हुआ कि आगे जाने का रास्ता इतना तंग है कि अब फौजियों को एक कतार में चलना पड़ेगा। तोपों के लिए खच्चर हासिल किए गए और जब ये काफिला सूरत में रवाना हुआ तो मालूम हुआ कि ये मुख्तसर फौजी काफिला 5 मील की लंबाई में फैला हुआ था। लेकिन रूसियों की खुशकिस्मती थी कि इन्हें भी अभी तक किसी किस्म की मुजामत का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन 5वें दिन किसी नामालूम समझ से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी और इस आवाज ने रूसियों को मुहतात कर दिया। रूसियों ने अपने राह में हायल फसलों का सफाया कर दिया। पुरअमन गांव भी बर्बाद कर दिए गए। मुसलमानों ने इक्का दुक्का पीछे रह जाने वाले सिपाहियों का सफाया कर दिया और पहाड़ी से रूसी फौजों पर भारी पत्थर लुढ़काते रहे। बेरन रोजन को यह मालूम हुआ था कि आगे कस्बा तोरी है और इस कस्बे में मुसलमान बहुत पुरजोश और जंगजू हैं। यह कस्बा तोरी को तबाह बर्बाद करने का फैसला कर चुके थे। अभी कस्बा तोरी कुछ दूर था कि रूसी फौज को बुलंदी पर एक बुर्ज दिखाई दिया। इस बुर्ज से वक्फे वक्फे से गोलियां चल रही थी और रूसी सिपाही मारे जा रहे थे।
रूसियों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और 3 दिन तक ये मुकाबला जारी रहा। रूसियों की पेशकदमी रुक गई। रूसियों को यकीन था कि इस बुर्ज में ज्यादा असला नहीं होगा, जब खत्म हो जाएगा तो रूसी फौज आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएगी। 3 दिन की मुजाहमत के बाद रूसियों के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया और फैसला किया गया कि चट्टान में सुराख करके बारूदी सुरंग बिछाई जाए और बुर्ज को उड़ा दिया जाए। मंसूबे पर अमल पैरा हुआ और इस तरकीब से रूसी फौज इस बुर्ज में दाखिल हुई तो इनकी मुलाकात 2 मुसलमानों से हुई। बेरन रोजा ने से पूछा, बकिया फौजी कहाँ भाग गए और किस रास्ते से भागे? दोनों मुजाहिदों ने जवाब दिया, इस बुर्ज में सिर्फ हम 2 थे, हम दोनों की सिवा कुछ तीसरा नहीं था। तो मालूम नहीं किस फौज का जिक्र कर रहा है। लेकिन बेरन रोजन को किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2 मुसलमानों ने इसको 3 दिन तक रोके रखा, और बेरन रोजन ही नहीं, किसी को भी इस अजीबोगरीब मुजाहमत पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन ये वाकया था। दूरी पर रूसी फौज का कब्जा हो गया और गागलगीज कबीले की मुहिम का खात्मा हो गया। जनरल विलियम नोफ का हुक्म मिल चुका था कि इस इलाके के मुजाहिदों का मुकम्मल तौर पर सफाया होना चाहिए। चुनांचे वो 9000 जवानों और 28 तोपों के साथ तख्तीना के ज़ेरी इलाकों की तरफ बढ़ा। रास्ते में जंगलात हायल थे, लेकिन इस जंगल में एक रास्ता जरूर होना चाहिए था, क्योंकि फौजी रिकॉर्ड में ये मौजूद था कि 12 साल पहले 1820 में रूसी जनरल परमोलोफ ने इस जंगल के दरमियान एक सड़क निकाली थी और इस सड़क के दोनों तरफ का रास्ता साफ किया गया था। लेकिन बाद में जब इस रास्ते कोई काम नहीं लिया गया तो दोबारा जंगल उगाया। जनरल यरमलोफ की बनाई हुई सड़क गायब हो गई और सड़क के आसपास के साफ के हिस्से दोबारा उगने और बढ़ने वाले दरख्तों में छुप गए। रूसियों की फौज में मुकामी सिपाही भी थे। ये ततारी नस्ल से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इन्हें आगे रखा जाता और इनसे बड़े बड़े काम लिए जाते। सफर मुसलसल जारी रखने से दुश्वार था कि काजी मुल्ला और इमाम शामिल के मुजाहिद इन इलाकों में फैले हुए थे और वो इनका रास्ता रोक रहे थे। कहीं कहीं से फायरिंग भी हो रही थी और रूसी फौजी मारे जा रहे थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि ये हमलावर मुजाहिद कहीं नजर नहीं आते थे। अंदाजे से बस ये मुमकिन था कि जहाँ कहीं से धुआं उठता नजर आए तो समझ ले कि धुआं किसी आबादी से उठ रहा है और रूसी इस धुएं की तरफ गोले चलाना शुरू कर देते और कुछ देर बाद मुकामी ततारी सिपाहियों को इस तरह भेज दिया जाता कि वो हलाक होने वालों को तलाश करें और इनकी लाशें उठा लाएं। कई बार इन कोशिशों में नाकामी हुई, क्योंकि ततारी सिपाही जुस्तुजू बिसार के बावजूद खाली हाथ वापिस आए। रूसी फौजियों का ये सफर जारी रहा। जंगली रास्तों की तलाश जारी रही, दरख्त कटते रहे, फिर नदियां भी हायल हो गई। अब रूसी सिपाहियों को और ज्यादा दुश्वारियां पेश आने लगी। आगे जाकर इन पर बाकायदा हमले भी होने लगे। ये हमलावर किसी तरफ से अचानक नमूदार होते और मुदाफियत का मौका दिए बगैर जानी नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाते। रूसी जनरल बेहद परेशान था कि ये कैसे जंगी माहिर हैं जो किसी तरह इनके काबू में नहीं आ रहे। ये कैसा तरीका जंग था जो रूसियों के लिए नाकाबिले फहम बना हुआ था। वो ये सोच रहे थे कि हमलावर इनको नुकसान पहुंचाकर बाएं तरफ के जंगलात में फरार हुए हैं तो इसी तरफ से वापस आकर दोबारा हमलावर होंगे, मगर दूसरी बार ये हमला अचानक सामने से नमूदार होते और मारते काटते इनके अकब में गायब हो जाते। आगे बढ़ने वाली फौज के लिए मुमकिन हो जाता कि वो अपने दुश्मन की तलाश में मजीद आगे जाएं। जैसे वो रुकते इन पर बाईं तरफ से हमला हो जाता। ये इंतहाई दुश्वार तरीका जंग था जिससे मुसलसल रूसियों को नुकसान पहुंच रहा था और मुसलमान बिल्कुल महफूज थे। फिर भी जिन हिस्सों को ये रूसी पीछे छोड़ आए थे वहाँ इन्हें ना तो जंगी मोर्चे मिले और ना मुसलमानों की आबादियाँ। इनका अकब बड़ी हद तक महफूज था। उन्होंने कुछ तामुल के बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर इन पर अचानक ज्यादा हमले होने लगे, जिससे इन्हें मालूम हुआ कि हो ना हो कहीं करीबी मुसलमानों की बस्तियां जरूर मौजूद हैं। इस शुबे को एक ततारी सिपाही ने यकीन में बदल दिया। इसने बताया कि इस जंगल को अबूर करने के बाद वो मुसलमानों की एक ऐसी बस्ती में दाखिल हो जाएंगे जहाँ मुसलमानों के तकरीबन 800 घर आबाद हैं और ये सारे लोग आला पाए के जंगजू हैं। और अगर इनकी औरतों बच्चों को देखकर ये शुबा किया जाए कि वो रूसी सिपाहियों के लिए नुकसानदेह नहीं है तो ये रूसियों की गलत फहमी होगी, क्योंकि यहाँ के बच्चे और औरतें भी बला के जंगजू हैं। रूसी जनरल को इसका तजर्बा भी हो गया। कई जगह रूसी अफवाज को नुकसान उठाने के बाद तहकीक से मालूम हुआ कि इनको नुकसान पहुंचाने वाली औरतें और बच्चे थे। तातारियों ने रूसी जनरल को बताया कि यहाँ काजी मुल्ला और इमाम शामिल मुसलमानों में ऐसी रूह फूंक दी है कि वो किसी तरह हथियार नहीं डालेंगे और जंग जारी रखेंगे। मुसलमानों के बच्चे और औरतें भी मुजाहिदों के साथ शरीक कार हैं और उन्होंने अपनी तादाद में कमी की वजह से एक ऐसा तरीका जंग दरियाफ्त किया है कि इन्हें दुश्मन की बड़ी से बड़ी फौज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ये अचानक हमला करके दुश्मन की ताकत कम करते रहेंगे। इन हालात में रूसी जनरल को इंतहाई गौर फिक्र और तदब्बुर से काम लेना पड़ा। जनरल ने जंगल की सफाई करके फौज के लिए एक मुस्तकिल कायम किया। यहाँ फौज का तोपखाना भी पहुंचा दिया गया और दूसरी फौजी साजो सामान भी। घोड़े और मवेशी भी इनके साथ थे। इन मवेशियों के लिए घास दरकार होती तो सिपाही घास काटने इधर उधर चले जाते, क्योंकि मवेशियों और घोड़ों को यहाँ चरने के लिए छोड़ देना खतरे से खाली नहीं था।
इन पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता और वो इन्हें लेकर गायब हो जाते। सिपाहियों को घास काटने के दौरान ये मुसीबत पेश आती कि इन पर मुजाहिदीन अचानक हमलावर होते और इनका सफाया करके गायब हो जाते। कुछ दिनों के बाद इन घास काटने वालों की हिफाजत के लिए भी फौजी दस्ते छुपाए जाने लगे ताकि इन्हें हमला आवरों से बचाया जा सके। ये तरीका कुछ कारगर और मुफीद साबित हुआ और जब भी घास काटने वाले सिपाहियों पर अचानक हमला हुआ तो जंगल में छुपा हुआ तोपखाना भी हरकत में आ गया और मुजाहिदों पर आग बरसाई जाने लगी। लेकिन इस खतरनाक सूरत हाल में भी मुसलमान अपनी जिद्दोजहद से बाज नहीं आए और ऐसे एक हमले में इनके सिपाही जख्मी होकर जंगल में रुपोश हो गए। मुकामी ततारी सिपाहियों को इनके पीछे रवाना किया गया और इनको हदायत की गई कि वो गिरफ्तार होने वाले मुसलमानों से इनका पता पूछें और इन्हें यकीन दिलाए कि अगर वो जंग से बाज आ जाएं तो इन्हें माफ कर दिया जाएगा।